Okay, so anyone from the class can recall last time हमने क्या क्या पढ़ा था? Ma'am, shall I say? Yes, please. Ma'am, first we have done the sexual reproduction in the plants, and then we have started with the animal reproduction in animals. So we have seen the asexual methods, which are regeneration, fragmentation, and we have also done budding Okay. and fission, or the cell division, we could say. Okay. We So, will, yeah, ma'am. Now you told that in the last period you told us to to have that you will take the sexual reproduction. Okay. So we completed the plant reproduction and we started animal reproduction, in which we have finished with the asexual form of reproduction in animals, right? So first was fission, जिसमें कि हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, binary fission, multiple fission. Right. Good. Yeah. And examples are amoeba and paramecium, and that these are the examples. Okay, very good. Ma'am, it is mainly in the lower class animal. Okay. Next was budding. Budding, basically bud formation. Example was yeast. On Hydra. Right. Yeast and Hydra were the example. Right. Budding के बाद हमने देखा fragmentation. Fragmentation. Ma'am, example as Spirogyra and Planaria. Okay. Planaria. Spirogyra is the lower plant, right? Yeah, ma'am. And Planaria is lower animal. And after fragmentation, we saw regeneration. Yeah, ma'am. Regeneration means particular organ or organism का वापस से formation. That regeneration, example, yes. Lizard stage. Liver, ma'am. Liver also. And human, Right. in humans there are liver, Right. nails and hairs. Correct. Hydra, ma'am. Hydra, you said Hydra. No, ma'am, Hydra won't be there. Are you sure? It won't be there? Yeah, ma'am, it won't be there for regeneration. Okay, good. So after regeneration, the last was parthenogenesis. Parthenogenesis definition. Ma'am, the seed formation without the seed formation or the offspring is formed without the fertilization. Okay, good. Prajwal, would you like to answer? Ma'am, what? You were answering about parthenogenesis. Ma'am, production of offspring without fertilization. Okay, good. Means everyone understood last time concept. और इसमें example में हमने bees के बारे में पढ़ा था कि कैसे bees with and without fertilized egg produce करते हैं. Yes. Ma'am, regeneration example is another. Axolotl's limbs are also there. Okay. So fertilized egg in parthenogenesis. Then, yeah, ma'am. And unfertilized egg. Unfertilized egg. Right. Fertilized eggs would be female and unfertilized egg would be male. Male. They are known as drones, and female are known as queen or workers. Female queen will be queens or workers. Right. So ये जो queen और worker होते हैं ना, they will divide based on the nutrition they are getting. अगर स्पेशल रॉयल जेली जो नेक्टर में प्रेजेंट होता है, यू मस्ट हैव सीन कि बीज हमेशा फ्लावर्स के पास आते रहते हैं और नेक्टर कलेक्ट करते हैं, दैट इज देयर फूड. तो अगर वो नेक्टर से रॉयल जेली जिन एग्स को सप्लाई करते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, दे विल बी द क्वीन इन फ्यूचर, और बाकी जो नहीं करेंगे वो फीमेल्स जो होंगे दे विल बी द वर्कर. ओके, चलो. सो दीस आर द कांसेप्ट्स. यस, मे बी वर्कर और द सर्वेंट्स वी कुड से. राइट. सो दीज वर द कॉन्सेप्ट जो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था. नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू द बेसिक मेथड्स, जो सॉरी नॉट बेसिक मेथड्स, द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इजी स्टेप है. इजी स्टेप इसलिए है बिकॉज सिंगल पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग जनरेट हो गया या नई जनरेशन आ गई.
न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। अगर इजी स्टेप होगा तो इसमें एनर्जी भी कम लगेगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं होंगे, तो इनमें एनर्जी कम यूज होगी। देन एनर्जी कम यूज होने के साथ साथ इनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है तो ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा बन पाएगा, सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा दैट विल बी फास्टर, यानी नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड अप तरीके से प्रोड्यूस हो जाएंगी। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी में एक और कैटेगरी आ जाती है, दैट इज द डिसएडवांटेजेस। सो एक कैटेगरी आती है डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट जस्ट गिव मी वन मिनट, आई थिंक देयर इज सम ओके, सॉरी देयर वाज सम डिस्टर्बेंस, आई थिंक कुछ बच्चों को लिंक में कंफ्यूजन हुआ। आई हैव सेंट इन बोथ द ग्रुप, राइट, 7th and 8th बोथ। Yes, ma'am. सो एक बार ऐसा हो गया था ना, आई फॉरगॉट टू सेंड इन वन ऑफ द ग्रुप, तो आज भी ऐसा हुआ क्या, मैंने किसी एक ग्रुप में नहीं सेंड किया? मैम आपने 8th वाले ग्रुप में भेजा था ना मैंने, दोनों ही शायद 7th and 8th दोनों में भेजा, राइट? हाँ 7th में भी भेजा था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम देन, मे बी उस बच्चे को कंफ्यूजन हुआ होगा। ओके, आई थॉट मैंने नहीं भेजा, सो आई वाज रिसीविंग द कॉल। ओके चलो, सो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। तो इनमें नुकसान क्या होता है, अब ये सुन लो। नुकसान ये होता है क्योंकि वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, तो देयर इज नो वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अगर वेरिएशन नहीं होगा पॉपुलेशन में तो समझ लो अगर कभी कोई बुरी सिचुएशन हो गई, एनवायरनमेंट में क्राइसिस हो गया, तो सबके सब एक साथ मर जाएंगे, क्योंकि इनमें किसी में भी पोटेंशियल नहीं है उस चीज से फाइट करने के लिए, बिकॉज दे ऑल आर एग्जैक्टली सेम। और एग्जैक्ट सेम होने की वजह से जेनेटिक्स यानी उनका जो डीएनए है उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। बट ऐसा हमारे साथ नहीं होता, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सब अलग दिखते हैं ना, हम सब अलग अलग तरीके से हैं, वी डोंट इवन लुक लाइक आवर पेरेंट्स, सम ऑफ अस, हमारे Yes, ma'am. सिबलिंग्स भी सारे अलग हैं। सो मींस हम एक फैमिली के होने के बावजूद हमें इतने वेरिएशंस हैं। सो इतने वेरिएशंस होने की वजह से देयर इज द चांस कि अगर क्राइसिस हो, फॉर एग्जांपल करेंटली पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में भी फ्यू ऑफ द पॉपुलेशन आर सर्वाइविंग एंड दे आर सर्वाइविंग गुड, तो ह्यूमन पॉपुलेशन कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं होगा या कंप्लीटली डिलीट नहीं होगा फ्रॉम द प्लैनेट। सो ये एक एडवांटेज होता है जो इनके पास नहीं है। सो दे आर द एग्जैक्ट कॉपी, सो देयर इज नो वेरिएशन, ये एक इनका मोस्ट डिसएडवांटेज। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्यू ऑफ द मींस ये कॉमन पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction. Shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay. Our next concept is about sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग है जहां पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, वन इज मेल एंड वन इज गोइंग टू बी द फीमेल। तो मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, ये स्पेशली डिजाइन्ड सेल्स बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं गैमीट। तो मेल बनाएगा मेल गैमीट एंड फीमेल बनाएंगे फीमेल गैमीट। और ये स्पेशलाइज सेल में पता है कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी है फ्यूजन। अब तक आपने क्या देखा, फ्यूजन, यानी एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और डॉटर सेल्स बना रहा है। दीज आर द सेल्स जिनमें कैपेसिटी है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ बाइंड होगा और नया पूरा सिंगल सेल बना लेगा एंड फर्दर नया ऑर्गेनिज्म भी डेवलप करवा देगा। सो दैट इज देयर स्पेशल क्वालिटी। तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट जब कंबाइन होंगे यानी जब फ्यूज होंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। And that fertilization will lead to one important cell formation जिसको हम बोलते हैं zygote.
ओके, सो ये मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन. तो आप लोगों को आज एक नया कॉन्सेप्ट मिला, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिन बच्चों को नहीं पता. Okay, I'll suggest every students please mute yourself. बाकी बच्चे mute yourself so that ज़्यादा noise disturbance ना हो. You can unmute whenever you have to answer. So fertilization is fusion of male and female gamete to produce zygote. अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे सबसे, मेल एंड फीमेल गैमेट अगर फ्यूज हो रहे हैं तो जाइगोट इज सिंगल सेल्ड और डबल सेल्ड? Single cell. So what will be double? Nothing. Yes, ma'am. Nucleus is also fused, but their DNA is double now. तभी तो हमने इनको 2n बोला ना लास्ट टाइम, याद है? हमने हेप्लॉइड और डिप्लॉइड कॉन्सेप्ट समझा था. याद आ रहा है बच्चों को? हेप्लॉइड और डिप्लॉइड. सो यानी हाफ डीएनए सेट इनके पास है, हाफ डीएनए सेट इनके पास है, और ये एक कंप्लीट डीएनए सेट बना रहे हैं इन जाइगोट. तो ये हाफ की बजाय मैं क्या यूज कर रही हूं? आई एम यूजिंग द सिंबल n. n इमेजिन करो, n इज फॉर न्यूक्लियस. तो आधा n इसके पास, आधा n इसके पास, n प्लस n देयर विल बी 2n. सो पूरा का पूरा जाइगोट जो होता है इट इज सिंगल सेल्ड. द ओनली डिफरेंस इज कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल हो जाता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, सो दैट इज फर्टिलाइजेशन. अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके भी दो कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है, मतलब बेस्ड ऑन लोकेशन, कि फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में हो रहा है उसके बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अगर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी से बाहर हो रहा है, मींस नीदर इन मेल नॉर इन फीमेल, किसी की भी बॉडी में नहीं हो रहा, वो बाहर सिक्रीट किया जा रहा है गैमेट और वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है, यूजुअली इन द फीमेल बॉडी, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. राइट. नाउ जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके एग्जांपल्स में दे दूं. एग्जांपल इज फ्रॉग, एग्जांपल इज फिश. दे ऑल प्रोड्यूस द गैमेट इन द वाटर. वाटर के एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस करेंगे एंड वो एनवायरनमेंट में, सॉरी टैडपोल्स, राइट, टैडपोल इज द इंटरमीडिएट स्टेज. वो ऑर्गेनिज्म, वो फ्रॉग के ही इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं, उनको टैडपोल्स बोलते हैं. काइंड ऑफ लार्वा, लार्वा वर्ड अगर आपने सुना होगा, या कैटरपिलर फॉर बटरफ्लाई. तो कैटरपिलर. ओके ओके, गुड देन. सो बेसिकली क्या हो गया, ये जो फिश या फ्रॉग के गैमेट्स हैं, मेल एंड फीमेल, अपने अपने गैमेट सिक्रीट करते हैं इन द एनवायरनमेंट. आफ्टर सर्टेन मैच्योरिटी उनके ऑर्गन्स गैमेट बनाते हैं और वो एनवायरनमेंट में सिक्रीट कर देते हैं. सिक्रीट करने के बाद क्या किया जाता है कि वो गैमेट्स अपने आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एंड कंबाइन होने लगते हैं. सो कंबाइन होते होते उनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ना ही मेल फ्रॉग ना ही फीमेल फ्रॉग या फिश के बॉडी में हो रहा है, इसीलिए वो एक्सटर्नल. अब जो इंटरनल है इट मींस इनसाइड बॉडी. इंटरनल में भी दो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं बेस्ड ऑन व्हाट फीमेल या मदर इज प्रोड्यूसिंग. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, लाइक डक. Oviparous they are known as. Right. And viviparous are the one who are laying that offspring only. Young ones, right. So egg laying हो गए. Example is reptiles. You can consider all reptiles. Birds. So they are egg laying और इनका नाम है oviparous. Oviparous अगर कंफ्यूज होते हो, ओ मतलब ओ लुक्स लाइक अंडा, इट लुक्स लाइक एग, तो इसीलिए ओविपेरस यानी एग लेइंग, ताकि इससे आपको याद रहे. दूसरा है यंग वन प्रोड्यूसिंग,
जो अपनी तरह ही दिखने वाले छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. Those are viviparous. Ma'am, mammals are example of it. Right. Humans, We mammals. are mammals. Human कह लो, cow, buffalo, ठीक है, all the cattles, मतलब in short, they are viviparous. So viviparous में mostly क्या, all mammals are viviparous. In short, they produce their young ones which look like them. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, once I've seen a bird egg, so it was that there was some sort of like it was like wire type. It was attached to the baby inside of that egg. Ma'am, Okay. what is that? And I've seen in like babies also. When I was also small, I've seen. That is umbilical cord. Umbilical cord, it is a combination of arteries and veins. Why it is there, but To pass on the nutrition to fetus or embryo. क्योंकि embryo भी वो उसको used to नहीं है ना बाहर के environment में, so that embryo cannot eat, that embryo cannot breathe and so many things वो नहीं कर सकता, तो उसको मदर की बॉडी से डायरेक्टली फूड या न्यूट्रिशन थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाता है. दैट्स व्हाई एक अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड रहता है. वो अटैचमेंट नहीं होगा तो वो फीटस मर जाएगा. जब तक उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, रेडी टू बी इन द एनवायरनमेंट, तब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट मदर से कनेक्ट. the eggs are also hatched. I've seen one man also. राइट. तो एग्स में भी सेम सिचुएशन होती है, क्योंकि एग्स के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, मींस एग आपने अगर नॉर्मली दोज हु कंज्यूम एग, आपने देखा होगा बाहर एक टफ शेल होता है, देन अंदर एक व्हाइट प्रोटीन होता है, उसके अंदर योक होता है, द ग्रीन पार्ट. दैट योक के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है. वो जो योक है, दैट येलो पार्ट, ये पूरा न्यूट्रिशन से भरा है. तो इनको भी जब ये एम्ब्रियो बड़ा डेवलप होने लगता है, तो इसका भी एक कॉर्ड डेवलप हो जाता है जो डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर पास ऑन करेगा all the nutrition. So there should be a medium because their mouth is not working yet. तो उनको खाना पता नहीं कि कैसे खाते, तो वो खाना जो है वो पहले उनको थ्रू ब्लड या किसी न किसी लिक्विड मीडियम के थ्रू ही मिलेगा. तो वो एग है तो कोई और लिक्विड मीडियम होता है, बट अगर वो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो थ्रू ब्लड होता है, बिकॉज हमारे पास ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. दैट्स व्हाई. Ma'am, to check that there is a baby in that egg, so we use that flashlight only, no? Right. See the position of the yolk. अगर उसमें बेबी है तो वो कैसे डेवलप हो रहा है उसके पोजीशन को देखने के लिए. Yeah, ma'am. Okay. Understood? Everyone understood external and internal fertilization? Yes, ma'am. Okay. Shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay. Now, next part. अभी ये हो गया oviparous and viviparous यानी internal and external fertilization. There is one more type of fertilization जिसको हम कहते हैं in vitro fertilization. अब इसका मीनिंग क्या है? इन का मीनिंग तो आप समझ गए, इनसाइड ऑफ समथिंग दैट इज इन. विट्रो का मीनिंग है ग्लासवेयर. तो ग्लासवेयर यानी बीकर, टेस्ट ट्यूब्स और मे बी ग्लास के बनने वाले और भी फैंसी यूटेंसिल्स. अब ये सब आपने कहाँ देखे हैं? इन द लैब. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन जो लैब कंडीशन में करवाई जाती है. मैम वो डेफिनेशन क्या है? आई एम राइटिंग. आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन विच अकर इन लेबोरेटरी. तो यानी जो लोग करवाते हैं, अगर आप लोग रिसर्चर बनते हो इन फ्यूचर एंड इफ यू चूज टू बी इन द रिप्रोडक्टिव रिसर्च मे बी सपोज, तो आप क्या करोगे? आप गैमेट के ऊपर स्टडी करोगे. आप गैमेट पे स्टडी करके देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप अपने हाथों से आर्टिफिशियली विद द यूज ऑफ सर्टेन फैंसी इक्विपमेंट्स आप क्या करोगे? फर्टिलाइज करवाओगे, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाओगे. तो अगर ये बाहर की इन्वायरमेंट में, बॉडी के बाहर आर्टिफिशियली कुछ कंडीशन सेट करके हम करवाते हैं, उसको बोलते हैं इन विट्रो.
इसीलिए हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं बोल रहे। एक्सटर्नल मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट किया है। इन विट्रो मतलब हमें कुछ स्टडी करना है तो हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईवीएफ। यू मस्ट हैव सीन सम हॉस्पिटल्स जिनके नाम के Yes, ma'am. बैनर पे आईवीएफ लिखा होता है, राइट? Ma'am, baby test tube. Sorry? test tube baby. Ma'am, test tube baby. Correct, very good. So I was about to say that test tube babies. Test tube किसका बना होता है? ग्लास का। Glass. तो वो बेबी किसने प्रोड्यूस हुआ? Glass. ग्लास वेयर में प्रोड्यूस हुआ। दैट्स व्हाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो जो आईवीएफ सेंटर आप देखते हो ना, वो क्यों यूज करते हैं, वो क्यों एस्टेब्लिश हुए, उसका रीजन सुन लो। जिन कपल्स को बेबीज नहीं हो सकते और मे बी दे आर फाइटिंग विद सम गैमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मे बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इशू है, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स ने ऐसा सोल्यूशन निकाला, वी आर गोइंग टू क्रिएट द एम्ब्रियो फॉर यू इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। और उसके बाद एक सर्टेन स्टेज के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको मदर की बॉडी में वापस से डाल देते हैं, जो भी मदर रेडी होती है। सो उनको सरोगेट मदर भी बोलते हैं। यस Yeah, ma'am. Ma'am, I've seen that once in that news it was coming that America has did something with that robots which produce baby frogs inside of them, so that they are doing like this one artificially they are doing, they are and producing so organs. that they are human, they are like living robots. Okay, okay, yes, I have also studied that same thing. So ऐसा हो रहा है means, but that is completely artificial. यहाँ पे क्या है, in vitro fertilization में हम mostly embryo formation तक ही बाहर करते हैं। उसके बाद बाकी organism जो है उनको कोई ना कोई suitable recipient चाहिए होता है, mother body, जिसके अंदर वो embryo को insert कर सके या embryo को transfer कर सके। So that test tube babies are nothing but in vitro fertilized babies. There are many now. ये अब आजकल high fashion में है and many of the people are doing it because of current lifestyle. Everyone is in the stress. अगर आप stressed हो तो आपकी body और आपके जो भी systems हैं वो affect होते हैं, and so is your reproductive system because that is part of your body. तो जिनके भी affected हैं and they need their babies, they need their families very soon. So majority of the human are adapting IVF. अब ये IVF सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, ये कैटल्स के लिए भी अप्लाई होता है, मींस एनिमल हस्बेंड्री में। जब आपको एक साथ बहुत पॉपुलेशन चाहिए, तो अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए, आपको बहुत सारे काउस चाहिए ताकि एक साथ में ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो पाए, और आपके पास टाइम नहीं है, आपको सब कुछ फास्ट करना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे फीमेल रेसिपिएंट्स रेडी रखोगे, देन बहुत सारे फर्टिलाइजेशन आप खुद से लैब में करवाओगे, लैब सिचुएशन में, एंड वो सब करवा के देन आप डायरेक्टली उनको ट्रांसफर करके विद इन 1 year or 2 year यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस मास एंड नंबर ऑफ कैटल्स, जो कि नेचुरली शायद बहुत स्लो होता। सो दीज आर आल्सो द टेक्निक्स जो कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग। You also done this that artificial methods. Sorry, who? Ma'am, you have also tried these artificial methods, like I was, to yes, do this artificially producing cattles. Yes, I have done that. Before teaching you, I was working in one of the research institute and I was embryologist. This was my designation. Now, you know the meaning? Embryo, right? Yes, ma'am. Embryo yani Ma'am, zygote se not production. baby. Right. So embryologist means I was the person, I used to do research on the gametes. So this is my department actually. The thing which I'm telling you, the sexual reproduction and types of fertilizations, I have done my specialization and my studies in this particular field. So I was embryologist and I used to take out eggs or sperm of male and female cattle, specifically cow, buffalo, and goat. I have done on 3 organisms, these 3 organisms, and I used to do the fertilization in the lab, in the laboratory condition. Okay, in the next class, remind me everyone in the next class, in the online session maybe, I will show you some pictures. I don't have the pictures of my lab in this particular laptop. I will show you, I will create one folder and I will show everyone how the embryo looks, how the cattle looks, how the farm looks. So it will be a good understanding of animal husbandry. Last term में वैसे भी हमने पिछले टर्म में पढ़ा था ना about agriculture, तो हमने animal husbandry भी पढ़ा था.
Right. So I have actually worked in the animal farm, जहाँ पे मैंने पूरा fertilization से related ही काम किया. That is my specialization. So that's why I know it. I know it better. Okay. So yes, I have produced test tube babies and even more than 100. I will show you. I will show you the pictures of all the small babies, especially calves, जो produce किए गए थे. They were very cute actually. Ma'am, I've also seen some of those who were Ma'am, have you done cloning? outside my house. No, sorry. One student at a time. Khushi, you tell me what you were saying. Ma'am, I've seen some of these calves also in front of my house. They were very small ones, Right. like not that average height they were having. Right. Yes, Shri Hari, what you were saying? Ma'am, have you done cloning? No, बच्चे, I haven't done cloning. पता है cloning का meaning क्या है? Cloning का Yes, ma'am. meaning है exact copy बनाना, है ना? और exact copy जो है वो diploid organisms नहीं exist कर सकते, means वो survive नहीं कर सकते. Exact copy पता है कौन होते हैं? Only identical twins. Ma'am, you told also that about the dolly sheep. Right. So dolly sheep जो बना था वो successfully रहा, but very Ma'am, EM will not made him. Sorry. Ma'am, EM will not. Sorry, I didn't get you. You have? Ma'am, means who made the dolly? Okay. No, I haven't. Ma'am, it is made in Scotland. Right. It is made in Scotland. वो बहुत ही short lived थी, but बहुत ज्यादा दिन नहीं जी पाई, बहुत थोड़े दिन रही, 2-3 years वो जिंदा थी, and then she died. तो exact copy बहुत dangerous है diploid organisms के लिए. The reason is अगर उनको उनका proper set नहीं मिलेगा, means recombination नहीं होगा और जो natural process है उससे वो fertilize नहीं होंगे, तो organisms में immunity और दूसरे developments जो होते हैं वो cope up नहीं कर पाते हैं, और cope up नहीं करने की वजह से they die. और सिर्फ क्लोन जो होते हैं ना वो आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे से नहीं बने. Some of those. My relatives are some of twins only. Okay, got it. There are But twins. the fact is identical twins ये क्या है, ये at a time fertilized egg के result है, that is the copy. Okay, so Ma'am, they're together born. right, but it doesn't means cloning का meaning क्या हुआ कि one person is producing exact copy of their another one. Identical twins मतलब उनके mother and father उनकी तरह तो दिखते ही नहीं. Ma'am, they both look together like same only. Right. अब देखो ट्विन सिस्टम में होता क्या है, इफ यू ऑल आर क्यूरियस देन मैं आपको बताती हूँ. मोस्टली क्या है, एग, ठीक है, फीमेल गैमेट, और उसमें क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, दैट इज द सिचुएशन. और इसके बाद क्या बनता है, एक आपको जाइगोट मिल जाएगा. तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ना सबसे पहले सेल डिवीजन होता है. अब बाइनरी फिजन सबको पता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, जब बाइनरी फिजन होता है द जाइगोट इज नॉट सपोज्ड टू सेपरेट. अगर इनमें सेल डिवीजन हो रहा है तो इनको सेपरेट नहीं होना है, इनको एक ही मेम्ब्रेन के अंदर इंटैक्ट रहना है. बट कभी कभी गलती से वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, और अगर वो कंप्लीटली सेपरेट हो गए तो क्या हो गए, एक मींस इनके पास जो जेनेटिक होगा वो मटेरियल होगा वो सेम होगा, एंड वही सेम जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्ट कॉपी अपनी बना देता है और 2 डिफरेंट सेल्स में बनने लग जाते हैं. और 2 डिफरेंट सेल्स में बनते हैं तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं और फ्यूचर में ये बनेंगे आइडेंटिकल ट्विंस. अगर एक जाइगोट से 2 अलग बॉडी डिवाइड हो गई तो दैट विल बी द आइडेंटिकल ट्विंस. बट कभी कभी क्या होता है कि एट अ टाइम मदर की बॉडी में 2 ओवम प्रोड्यूस हो चुका है, और 2 ओवम प्रोड्यूस होने की वजह से 2 अलग अलग फर्टिलाइजेशन होते हैं. तो यानी आपको 2 अलग जाइगोट मिलेंगे और उनका डेवलपमेंट. तो ये जो जाइगोट है इनमें कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक अलग स्पर्म है, एक अलग है, ये दोनों ही कंप्लीटली अलग हुए ना, तो इनका जेनेटिक मटेरियल का सेट भी अलग होगा. तो इस वजह से ये भी ट्विंस होते हैं, बट ये अनआइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. Ma'am, like male, they are male and female. They can be male and female, but if they are of same gender, maybe दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, बट वो एक जैसे नहीं दिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है. Ma'am, and in some very rare cases also triplets are also there. Yeah, ma'am. अगर ट्रिपलेट्स हैं, अगर ट्रिपलेट्स एक जैसे दिख रहे हैं, अगर तीनों ही ट्रिपलेट्स सेम दिख रहे हैं, तो अब आप समझ गए कि ये एग का मींस ये जाइगोट का
3 पार्टीशन हुआ है And 3 तभी, parts and 3 daughter cells are there then. राइट। बट अगर 3 अलग अलग एग बने और उनका फर्टिलाइजेशन They हुआ are तो आपको जो identical ट्रिपलेट्स मिलेंगे दे वोंट बी आइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल ट्रिपलेट्स। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर 3 बन गए तो दे विल बी आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स। दैट इज द कंडीशन। अंडरस्टूड एवरीवन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Yeah, फर्टिलाइजेशन? ma'am. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? Yes, ma'am. ओके, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या है? मेटा वर्ड पहले साइड में कर लो, मॉर्फोसिस वर्ड जो है दैट हैज अराइव्ड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, एंड मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो भी आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे मॉर्फोसिस का मीनिंग हुआ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एंड मेटा का मीनिंग पता है? मेटा आपने बहुत जगह सुना होगा, एनिमेशंस में सुना होगा। मेटा का मीनिंग है चेंज, मींस ह्यूज चेंज। तो पूरा का पूरा मीनिंग क्या हुआ? देयर इज बिग चेंज इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। So change in external characteristic is known as metamorphosis। अब ये किन में होता है? बहुत सारे लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स जब उनके बेबीज डेवलप हो रहे होते हैं, मतलब सिचुएशन जर्नी किसी की भी कैसी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? दे फर्स्ट बिकम जाइगोट, जाइगोट के बाद दे बिकम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद दे बिकम समथिंग फीटस, जिसको हम बोलते हैं जो डेवलपिंग ऑर्गन जिनका बन जाता है, एंड आफ्टर दैट द न्यूबॉर्न बेबी, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंट। ओके, सो ये 4 स्टेजेस डिफरेंट होते हैं विद डिफरेंट नेम्स। अब ये मेटामॉर्फोसिस जो होता है मोस्टली उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता हो। क्यों ऐसा पता है? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये पूरा प्रोसेस आप देख पाओगे। तो एग्जैक्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिटस स्टेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको विजिबल होगा, एंड क्योंकि वो विजिबल होगा, Ma'am, like example is that frog. राइट, दैट एग्जांपल That's इज फ्रॉग, राइट। आई एम जस्ट बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली कहाँ पे होगा। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें भी है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि आउटसाइड एनवायरनमेंट में है तो उनका डेवलपमेंट आपकी आंखों के सामने होगा। सो व्हाट हैपेंस ऐसे केस में अब क्या हो जाता है? सेम जर्नी, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड उनका इंटरमीडिएट स्टेज आ जाता है, दैट इज लार्वा। किसी किसी में उसी लार्वा का नाम है टैडपोल, कभी कभी हम बोलते हैं बटरफ्लाई के केस में कैटरपिलर्स। ओके, ये क्या होते हैं? अपने मेन जो एडल्ट है, यानी जो एडल्ट फ्रॉग, एडल्ट बटरफ्लाई और एडल्ट फिश, ये इनकी तरह नहीं दिखते, ये कंप्लीटली डिफरेंट दिखते हैं। आपको पता है जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है इट लुक समथिंग लाइक दिस। Yes, ma'am. इट लुक मोर लाइक फिश देन फ्रॉग। ठीक है, इनके पास टेल होता है जबकि फ्रॉग के पास कोई टेल नहीं होता। तो इतना बड़ा चेंज आ गया ना, मींस यहाँ पे टेल होते, सॉरी Ma'am, ma'am, after some times they developed, they developed their bias. Maybe after some days they will develop these things. right, Their after hands 7 and days, then the tail correct, would. correct. And after those days means after tail development वो धीरे धीरे उनमें क्या होगा? चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस आते आते वो क्या बनेंगे? दे विल बी एडल्ट फ्रॉग। मैंने एग्जांपल सिचुएशन फ्रॉग का लिया, इमेजिन। ठीक है, तो फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं। तो वो फ्रॉग जब अपने लार्वल स्टेज में होता है उसके पास टेल होता है, वो फिश की तरह दिखता है, एंड फिश की तरह दिखने की वजह से यानी वो अपने ही पेरेंट्स की तरह दिखता नहीं है, और अचानक से कुछ दिनों में वो इस फॉर्मेशन से फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये जो फ्रॉग लाइक सिचुएशन हुआ ना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज व्हाट मींस ह्यूज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए कि नहीं हुए?
कंप्लीटली चेंज हो गया, उनके पास लिम्स आ गए, फिंगर्स आ गए, आईज आ गया, थ्रोट आ गया, बट उससे पहले तक तो उनके पास सिर्फ टेल था और कुछ भी नहीं था, कोई लिम्स नहीं थे उनके पास। तो ये जो चेंज हुआ ना, दैट बिग चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। एवरीवन अंडरस्टूड मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, एनी डाउट? No, miss. ओके, नाउ अब जो मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ये सारी चीजें हो गई, एक और मुझे आपको चीजें बतानी है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे हमने इधर डिस्कस किया था वैसे ही उनके केस में हम क्या बोलते हैं डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक ही बॉडी में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। that kind of organism is known as hermaphrodite। जैसे फ्लावर्स थे ना, हमने फ्लावर के टाइम पे क्या देखा था, सिंगल फ्लावर में एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था, तो वो फ्लावर हो गया हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन are present in the same body. That is known as those organisms are hermaphrodite. Example दे दूं, प्लांट का तो पता चल गया, कुछ फ्लावर्स होते हैं। एनिमल्स में है अर्थवॉर्म, सुना है किसी ने अर्थवॉर्म? ऑफ कोर्स सुना है। दे आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। सो फार्मर्स फ्रेंड जो है दे आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट्स, उनके पास मेल एंड फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स हैं एंड सिचुएशन के हिसाब से वो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं एंड अपने यंग वंस प्रोड्यूस करवाते हैं। अंडरस्टूड दिस टर्म? यस Ma'am, I have a video related how these frogs have that babies. okay, so okay, Yeah. I understood. I received your, okay, you have sent it to me. Ma'am, I will send it to you. Okay, I'll check if it is a right video or not. I'll check. The thing is, अभी मैं यहाँ पे show नहीं कर सकती. The reason is कि internet buffering होगा, so you won't be able to see my screen. अगर मैं video play करूँगी तो that is the problem. Yeah, ma'am. Okay. So anyone, means those who are interested, you can type on YouTube. आपको fertilization methods and अगर आपको larva formation, tadpole formation ये सब आपको देखना हो तो वो सब आपको मिल जाएगा. You can see that. Okay, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट, अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, ओविपेरस, विविपेरस, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े एंड अबाउट द क्लोन आल्सो वी स्टडीड अबाउट कि कैसे क्लोन बन रहा है, डॉली शीप कैसे बन गई, कैसे वो जिंदा थी नहीं थी, ये सारी चीजें मिला। अब ये कुछ मींस ये सिचुएशन देखने के बाद, ये सब समझने के बाद बस एक पोर्शन और रह गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी, बट पहले मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेती हूँ बिकॉज आवर सेशन इज अबाउट टू फिनिश नाउ। तो मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेंगे वेरिएशन। जो पॉपुलेशन है उसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से क्या होगा, बेटर जेनेटिक्स के भी प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। देखो अभी एक चीज आप लोग समझ लो, बिकॉज हायर क्लास में आप डीएनए और जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ोगे। तो दो चीजें होती है, जब वेरिएशन होता है ना तो ऐसा भी होता है कि चांस हो कि सबसे पुअर जेनेटिक किसी को मिले, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं विद सम काइंड ऑफ डिफॉल्ट, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स और मे बी सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक एरर हो गया शायद, और उस जेनेटिक एरर की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, तो ये भी होता है। बट
इसका बेटर पार्ट क्या है? बेटर पार्ट ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें बेटर चांसेस हैं अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाइंड होने के, और वो बेटर चांसेस होने की वजह से उस पर्सन के पास ज्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो उसी पॉपुलेशन में है। और अगर कल को उस पॉपुलेशन के साथ कोई अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मे बी क्लाइमेट हार्श हो गया या जैसे अभी पेंडेमिक है वैसी सिचुएशन आई, तो दोज हु हैव बेटर जेनेटिक्स उनके चांसेस है सर्वाइवल के। तो इन जनरल ऑन अर्थ वो पर्टिकुलर स्पीशीज कभी इरेडिकेट नहीं होगा, है ना, कभी गायब नहीं होगा, वो उनका एग्जिस्टेंस रहेगा ही रहेगा और वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, जो बच जाएगा उसको वो नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। सो दैट इज व्हाट वेरिएशन इज मीनिंग। और दूसरी चीज, जब वेरिएशन होता है तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्ट करता है, दैट इज अडेप्टेशन। सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी में अपनी एक्टिविटीज में चेंजेस लाना, दैट इज अडेप्टेशन। सो बेटर अडेप्टेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सो दीज टू आर द हाईलाइटिंग एडवांटेजेस। ये समझ में आया? Yes. Okay, someone raised their hand. I forget who. Please repeat. Which point? Genetic variation. Okay, genetic variation. Genetics means your DNA. I was talking कि जो DNA है इनमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्यों आते हैं? अब देखो, दो इंडिविजुअल के गैमेट्स मैच हो रहे हैं ना, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो मेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, फीमेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। ये दो अगर कंबाइन होंगे तो इनका कॉम्बिनेशन कुछ और बनेगा ना, मींस 2n होगा, बट उसमें वेरिएशन होगा। इसीलिए क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन में इतने चेंजेस आपको मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी तो सब लोग समझते हो, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई सिचुएशन अकर होने के चांसेस। तो बेटर और वर्स्ट दोनों ही टाइप के जेनेटिक्स के होने के चांसेस, जो उनकी प्रोबेबिलिटी है उसके वो प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट रहती है इन द पॉपुलेशन। दैट इज व्हाट जेनेटिक वेरिएशन मीन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बस सीधा सीधा ये कह रही हूँ कि हमारे पास डीएनए है और डीएनए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, आपके जो भी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस योर हाइट, योर स्किन कलर, योर हेयर टाइप, योर वॉइस, योर बिहेवियर, ये सारे आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इसके जो चांसेस है, मींस ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बहुत सारे वेरिएशंस है ना। आप और आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स, आपके चाचा मामा, ये लोग क्या दिखते हैं? सब लोग अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। और कोई भी पॉपुलेशन में वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि उसके डीएनए के अलग अलग वेराइटीज प्रेजेंट है। अंडरस्टूड समीक्षा? Yes, ma'am. Okay. Yes. Anything else? Any other questions? No, ma'am. Okay. Ma'am, I've shared the video. Okay. Yes, I will check. अब ये तो हो गए एडवांटेजेस। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज, डिसएडवांटेजेस में दो ही चीजें, इनका कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स टाइम, ठीक है, इट टेक्स टाइम, और इसके एम्ब्रियोज के भी डेवलपमेंट में टाइम लगता है। सो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट इनके भी डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं, दे विल बी, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कॉम्प्लेक्स मेथड। तो उसकी वजह से क्या होता है? हायर एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी ज्यादा लगती है, हायर एनर्जी कंजम्पशन। प्लस जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनका जो पॉपुलेशन होता है या काउंट होता है, इट इज लेस देन एज कंपेयर टू असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन काउंट इज लेस एज कंपेयर टू सेकेंड, इनका जो डेवलपमेंट स्टेज है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज, नॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आई विल यूज बेटर वर्ड, मे बी
जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन में एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या होता है. जेस्टेशन पीरियड इज लॉन्गर. जेस्टेशन का मीनिंग है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से इन्फेंट तक की जर्नी कितना टाइम लगता है. जैसे ह्यूमन बेबीज जो होते हैं 9 मंथ लगते हैं, 9 मंथ्स में प्रोड्यूस होते हैं. सो मदर की बॉडी को क्या करना पड़ता है, 9 मंथ्स तक कैरी करना पड़ता है. शी हैज टू वेट फॉर 9 लॉन्ग मंथ्स, तब जाके एक इंडिविजुअल डेवलप होता है. सो यानी जो लॉन्गर, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जेस्टेशन. सो जेस्टेशन का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी पीरियड होते हैं दे आर लॉन्गर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. तो वो लॉन्गर पीरियड होने की वजह से इतने टाइम में बहुत सारे डैमेजेस भी हो जाते हैं समटाइम्स, और द मदर हैज टू बी वेरी 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 केयरफुल. और अगर वो केयरफुल नहीं रहे तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो जाइगोट से इन्फेंट तक की जर्नी है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ना कोई डिसरप्टिंग एक्शंस हो सकते हैं. So that is the situation. So these are the disadvantages. Understood? Disadvantages? Yes, ma'am. Okay. So this is about sexual reproduction. मैंने basic Ma'am. concept. Yes. Ma'am, can you repeat the last point? I was not able to hear. Okay. Do you understood gestation? I have written over there pregnancy. Yes, ma'am. हाँ, तो जेस्टेशन और प्रेगनेंसी का मीनिंग है, लॉन्गर प्रेगनेंसी पीरियड का मीनिंग है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है. फर्टिलाइजेशन से सबसे पहली चीज क्या बनती है, जाइगोट. तो वो जो द मोमेंट जाइगोट इज प्रिपेयरिंग मींस फॉर्मिंग, Ma'am, उसके your बाद voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग. No, ma'am. आई थिंक माय इंटरनेट इज ओके बच्चे, प्लीज चेक योर इंटरनेट मे बी. माय वॉइस इज नॉट गुड. Ma'am, it's good. Okay. So I'm saying gestation और pregnancy, it means कि जो टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का, ताकि वो प्रॉपर इन्फेंट बन जाए टिल द बर्थ, उस पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी. तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये पीरियड जो होता है वो लॉन्गर होता है. इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स का टाइम पीरियड क्या है, राइट नाउ आई सेड इट इज समवेयर अराउंड 9 months. 9 months. So 9 months जो है it is also for cows, it is also for buffaloes, camels, जो cattles होते हैं उनके लिए भी सेम पीरियड होता है. एंड फॉर अनदर ऑर्गेनिजम्स जैसे वेल हो गया, उनके लिए 2 years, समटाइम मोर देन दैट. एलिफेंट के लिए भी 2 years. सो दीज आर द वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. अगर हम काउंट करें बहुत ज्यादा टाइम होता है ना. इतने टाइम में हो सकता है अगर इस जेस्टेशन पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी मदर ने अगर ज्यादा ख्याल नहीं रखा, वो केयरफुल नहीं रही और उनको प्रॉब्लम हो गई, तो हो सकता है मदर एंड द चाइल्ड दोनों की ही लाइफ खतरे में हो सकती है. ओके. तो इसीलिए भी पॉपुलेशन काउंट जो होता है वो हमारा काफी कम होता है, क्योंकि सक्सेसफुल चाइल्ड बर्थ जो होता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है, मींस एज कंपेयर टू असेक्सुअल वन. जेस्टेशन पीरियड ज्यादा हो गया, जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी पीरियड ज्यादा हो गया. तो यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होने के लिए ज्यादा समय चाहिए. बात समझ में आई? टर्टल्स का कितना होता है जेस्टेशन पीरियड? टर्टल्स बिकॉज टर्टल्स रेप्टाइल्स इन जनरल बहुत कम होता है. आई थिंक समवेयर अराउंड 2-3 months, 3 months आई थिंक. आई एम नॉट श्योर, डिपेंड करता है. जैसे डॉग एंड कैट दैट आई नो दैट इज एग्जैक्टली 2 months. Turtle gestation maybe 2-3 months if I know well. और हो सकता है टर्टल या टॉर्टोइस दोनों में से कोई एक जो है उनका बहुत लंबा होता है, somewhere around this much, 2 years. That I will confirm. It is of tortoise, maybe. Okay. It is of tortoise. Okay. So it completely depends. वो कम भी हो सकता है और वो ज्यादा भी हो सकता है. So few months, 2-3 months ले लो, वहां 2 to 3 months to few years also. 2 years approximately. टर्टल या टॉर्टोइस फैमिली का, उनकी बॉडी साइज के ऊपर है. जो लार्ज स्पीशीज है उनको 2 years लगेंगे, जो स्मॉलर स्पीशीज है उनको कम टाइम लगेगा. ऐसा है. Okay, ma'am.
ओके एंड उनकी प्रेगनेंसी बच्चे टोटल के जो प्रेगनेंसी होती है ना, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये भी. ओके सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन. नेक्स्ट सेशन में अब 2 ही चीज रह गई हैं, ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उनका गैमीट का एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली उनका गैमीट का स्ट्रक्चर प्लस एम्ब्रियो डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप्स जो हमने पढ़े, जो बातें हमने समझी, वो आप सबको रिवाइज करना है, एवरीवन, स्पेशली 8th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड डोंट वरी, आपका सिलेबस नहीं है, यू हैव टू स्टडी अगेन इन द नेक्स्ट ईयर, सो यू डोंट वरी अबाउट इट. बट 8th स्टैंडर्ड यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. ओके Yes, ma'am. ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय एवरीवन, गुड नाइट. Bye, ma'am. Okay, take care, see you next Bye, week. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Mr. K.